Hello, students. Welcome back to BioBlossom Education. I am Sonali Dhanukar, your biology educator, mentor, and guide. What if I told you not all infectious agents are viruses? Some don't even have DNA and some don't even have RNA. Sounds unbelievable, right? So in today's video, we are going beyond viruses to explore two of the most unusual infectious agents in biology, which are prions and virions. How can a protein cause disease? What exactly is a virion made of? And how are they different from viruses? In this lecture, we will break down their structure, characteristics, and mechanisms in a simple and easy to understand way. So stay tuned because this topic might completely change how you think about infection and life itself. So let's start the class. Prions are proteins. Prion proteins are designated as PRP. The word prion is coined in 1982 by Stanley B. Prusiner and is derived from the words protein and infection. ओके तो बेसिकली प्रियॉन्स क्या है बेटा तो दे आर प्रोटीन्स ओके और उनको किन्होंने डिस्कवर किया तो 1982 में स्टैनली बी प्रिजनर ने उनको डिस्कवर किया एंड प्रियॉन वर्ड इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड प्रोटीन प्लस इन्फेक्शन एंड फॉर दिस डिस्कवरी इन 1997 प्रिजनर won the Nobel Prize. Okay. Now what are actually prions? Prions हैं क्या तो prions are normal protein. They are a type of normal cellular protein which is present commonly in the cell membrane of neuron cells. हमारे नर्व सेल न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं ओके एंड अगर हम इनका रोल देखें तो एकदम एग्जैक्ट रोल ऑफ सच प्रोटीन्स आर नॉट नोन बट इट इज expected or believed that these normal prion proteins help in the process of synapses. ओके बट जब ये नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन का मिसफोल्डिंग हो जाता है प्रोटीन्स तो फोल्ड करते हैं ना प्रोटीन्स आर बिलीव्ड टू बी गेट फोल्ड टू बिकम एक्टिव जैसे उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर देन सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी और प्रोटीन तभी काम कर पाते हैं जब उसका करेक्टली फोल्डिंग हुआ है बट यहाँ पे क्या हो रहा है जो हमारी नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन्स हैं दे बिकम मिसफोल्डेड और जब वो लोग मिसफोल्डेड हो जा रहे हैं दे बिकम इन्फेक्शियस सो बेसिकली दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स ओके देन जो मैंने बोला वही लिखा है नंबर 3 में द एंडोजीनियस नॉर्मल सेलुलर फॉर्म इज डिनोटेड एज PRPC. C stands for cellular, that means it is normal cellular form, while the disease causing infectious and misfolded form is treated as PRPSC. ओके नॉर्मल जो फॉर्म है उसको हम PRPC बोल रहे हैं बट जो मिसफोल्डिंग हो गया है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस प्रियॉन को हम बोलेंगे PRPSC और SC यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है बेटा स्क्रैपी स्क्रैपी इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड लिंक्ड विद द प्रियॉन्स ओके नाउ बेसिकली क्या हो रहा है कि बिकॉज मैंने बोला ये जो नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन रहते हैं वो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट रहते हैं तो जब इनका मिसफोल्डिंग हो जाएगा तो कौन सा पार्ट इफेक्ट हो रहा है न्यूरॉन एंड ब्रेन मोस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द आवर ब्रेन एज अ रिजल्ट क्या होगा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होगा ब्रेन डिजीज विल बी सी एंड स्क्रैपी इज वन सच डिजीज then surprisingly PRPSC is derived from PRPC by a conformational misfolding event characterized by the transition of alpha helix into beta sheet structure. तो जब हम लोग प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शेप्स तो यहाँ पे क्या होता है जो नॉर्मल PRPC फॉर्म है उसमें अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट रहते हैं but when these alpha helix are replaced by beta pleated sheet structures, the normal PRPC changes into PRPSC, which become infectious. Okay, then जो normal है PRPC, it is made of 253 amino acid residues and they are basically glycoproteins. Glyco means carbohydrate plus protein.
and linked to the membrane by a GPI linkage. What is the full form of GPI linkage? So GPI stands for glycosyl phosphatidyl inositol. Okay. Then next. Okay. So this is the diagram. First में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है PRNP. It is a gene in your DNA which encodes for prion protein. ओके तो ऑब्वियसली हम प्रोटीन के लिए तो हमको जीन चाहिए. डीएनए में जो जीन है दैट इज ओनली एनकोडिंग फॉर प्रोटीन्स. तो हमारे डीएनए में एक जीन होता है जिसका नाम है पीआरएनपी और वो जीन क्या कर रहा है नॉर्मल प्रियन प्रोटीन्स को फॉर्म करता है. ना जो नॉर्मल प्रियन प्रोटीन रहते हैं या जिनको हम पीआरपी या पीआरपीसी बोल रहे हैं that is a normal protein which is present on the surface of your cells. Which cells? आपको याद रखना है न्यूरॉन्स नर्व सेल्स के सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं. बट प्रियन क्या है? तो प्रियन इज एन इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड ऑफ मिसफोल्डेड प्रियन प्रोटीन्स. जो नॉर्मल प्रियन प्रोटीन्स है जब उनका मिसफोल्डिंग हो जा रहा है एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो ड्यू टू दैट मिसफोल्डिंग क्या हो रहा है प्रियन बिकम्स इन्फेक्शियस पार्टिकल. Okay, then next, it is expressed mainly in the CNS, that is central nervous system, but can also be found in other non-CNS tissues. Okay, now its physiological functions remain to be defined, means exactly what the normal prion proteins are doing in our body that is unknown, but still we can say that they may play a role in oxidative stress reduction, signal transduction, apoptosis regulation, cellular uptake or binding of copper ions, adhesion of the extracellular matrix, and the formation and maintenance of synapses. Okay. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्शन का मतलब आप लोग क्या समझते हो बेटा? इट मीन्स बैलेंसिंग फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बॉडी. ओके देन सिग्नल ट्रांसडक्शन तो आपको पता होगा. सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच सेल रिसीव्स द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स. ओके देन नेक्स्ट एपोप्टोसिस लिखा हुआ है बेटा, उसका मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. Then cellular uptake or binding of copper ions. Now binding of copper ions is very important process and it is essential for metabolism. Okay, because copper acts as a coenzyme. Then adhesion of the extracellular matrix and formation and maintenance of synapses. Synapses मतलब तो आपको पता है it is the junction point where neurons communicate with each other. ओके नाउ ये सब फंक्शंस कौन परफॉर्म करते हैं? नॉर्मल प्रियन प्रोटीन. बट जब प्रियन नॉर्मल प्रियन प्रोटीन चेंजेस इनटू द इन्फेक्शियस प्रियन then what happens? It leads to neurodegenerative disease in animals, also in humans. ओके और बेसिकली प्रियॉन्स डिजीज जो होता है वो एनिमल्स को ही अफेक्ट करता है. प्लांट्स को ऐसा कभी देखा नहीं गया कि प्रियॉन प्रोटीन्स अफेक्ट प्लांट. दे ऑलवेज अफेक्ट्स एनिमल्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन. ओके नाउ व्हाट हैपन, तो हम पढ़ लिए कि नॉर्मल पीआरपीसी फॉर्म जो रहता है इट इज कन्वर्टेड टू पीआरपीएससी फॉर्म वेर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इज रीफोल्डेड इनटू बीटा शीट. And this structural transition is accompanied by profound changes in the physicochemical properties of the PRP. Okay. Then next आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम जो है दैट इज ऑफ PRPC विच इज अ नॉर्मल प्रोटीन. और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये चीज जो है दैट्स इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. ओके हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स है. बट जब ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड हो जा रहा है बाय बीटा प्लेटेड शीट्स, दिस आर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स, then PRPSC form is seen which is a disease causing form. Okay, then PRPC is sensitive to proteases whereas PRPSC is protease resistant. तो प्रोटीजेस क्या होता है? द एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन. तो नॉर्मल जो फॉर्म है वो तो सेंसिटिव रहेगा बट जो इन्फेक्शियस फॉर्म बन रहा है दैट इज रेजिस्टेंट. दैट मीन्स प्रोटीज एंजाइम कैन नॉट ब्रेक डाउन द इन्फेक्शियस प्रियन. Okay, then high content of beta sheet results in the formation of amyloid fibrillous structure
that is absent from the PRPC form. Okay, now the PRPSC form can perpetuate itself by causing the newly synthesized PRP protein to take up the PRPSC form instead of the PRPC form. now क्या होता है बेटा, देखो जनरली हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कौन क्रिएट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया। और वो लोग क्यों कर रहे हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शन? बिकॉज दे आर एबल टू रेप्लिकेट इनसाइड आवर बॉडी. They have the property to reproduce and increase their number or multiply themselves. But यहाँ पे जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है दैट इज अ प्रोटीन. वो सिर्फ एक प्रोटीन है जिसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल, ना ही डीएनए ना ही आरएनए प्रेजेंट है. तो फिर ये फॉर्म कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट कर रहा होगा टू कॉज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी? तो बेसिकली अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो ये तो रेप्लिकेट तो नहीं कर सकता हमारे बॉडी के इनसाइड. तो फिर ये करता क्या है एक्चुअली बेटा? तो ये क्या करता है, मतलब जो नॉर्मल प्रोटीन्स फॉर्म रहते हैं, नॉर्मल प्रियॉन फॉर्म्स रहते हैं, उनके साथ ये जो इन्फेक्शियस फॉर्म है इट फॉर्म बॉन्ड. means the infectious prion protein has the ability to make bonds with the normal prion protein, and then it convert the normal proteins into misfolded prion protein. Basically it gets attached to the normal prion and convert them into infectious form. Okay, and then as a result क्या होता है? Aggregate of infectious prion protein is formed which can cause infection and destroy all our neuron cells. Okay, so इसीलिए next point में लिखा गया है they are novel transmissible agents causing a group of neurodegenerative disease. Okay, and collectively prion disease are described as spongiform encephalopathies. ओके, कलेक्टिवली प्रियॉन डिजीज जितने हो रहे हैं एनिमल के बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफालोपैथीज. ओके, स्पॉन्जीफॉर्म मतलब तो आप लोग को समझ आ रहा है, स्पॉन्ज लाइक. एनसेफालो दैट इज रिलेटेड विथ ब्रेन एंड पैथीज इज रिलेटेड विथ डिजीज प्रोसेस. That means they are such disease which is affecting the brain and converting the brain into sponge like. ओके, एंड जैसे मैंने बोला कि प्रियॉन्स नॉर्मली अफेक्ट एनिमल्स को ही करते हैं, तो नो सच प्रियॉन डिजीज ऑफ प्लांट्स आर नोन टिल डेट. देन Kuru was the first naturally occurring encephalopathy of humans shown to be caused by prions. Okay, नाम याद रखना है, it is the first disease which is caused by prion in a human body. And it was first described by Gajdu, Sek and Gigas in 1957. Okay, then Kuru is characterized by cerebellar ataxia and shivering like tremor that produces complete motor incoordination. Okay, तो symptoms क्या होता है बेटा Kuru का? यहाँ पे लिखा हुआ है कि cerebellar ataxia, that means what? तो it is also a neurological condition in which cerebellum is actually damaged. और जो हमारा सेरेबेलम होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जिसमें क्या होता है? इट इज एक्चुअली रिलेटेड विथ बैलेंस कंट्रोल और मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी. तो व्हेन सेरेबेलम इज अफेक्टेड देन पुअर कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज सेम. ओके, एंड एटाक्सिया का मतलब होता है अनस्टेडी वॉकिंग. That means the person suffering from this will suffer in proper walking and maintaining the body posture. And shivering like tremor, that means क्या होगा? shaking होगा body का, that is means involuntary muscle contraction, in which shaking देख पाओगे आप, body shake हो रहा है, hand, legs ये सब shake कर रहा है. Okay, then currently Kuru is virtually extinct due to a ban on ritualistic cannibalism in the area of Papua New Guinea where it was endemic. ओके, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बेटा. जब ये चीज़ का डिस्कवरी किया गया दैट मीन्स इन 1957 जब गजडू, सेक एंड जिगस डिस्कवर्ड किए अबाउट Kuru, तो उन्होंने एक्चुअली क्या देखा था कि जो पीपल्स होते हैं पैपुआ न्यू गिनी के, उनका एक प्रैक्टिस था कि वो लोग क्या करते थे जब भी उनका कोई फैमिली मेम्बर का डेथ हो जाता था तो दे कंज्यूम द बॉडीज ऑफ द डिसीज्ड loved ones.
as a sign of respect and mourning. And basically women and children perform this. That means वो लोग क्या करते थे, जिनका भी डेथ हुआ है उनके रिलेटिव का, उनके बॉडीज को वो लोग कंज्यूम करते थे, बेसिकली द ब्रेन, एंड इट वाज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम। एंड इसी के चलते क्या हुआ बेटा, ब्रेन्स में जो इन्फेक्शियस प्रियॉन्स थे, दे स्टार्टेड टू ट्रांसमिट, एंड एज अ रिजल्ट देयर वाज एंडेमिक सिचुएशन। बट अभी क्या गया, उस चीज़ पे बैन कर दिया गया, एंड फॉर दिस अभी ये देखा जा रहा है कि जो कुरु है इट इज़ वर्चुअली एक्सटिंक्ट, और कुरु डिजीज जो है वो लोगों को नहीं हो रहा है, ह्यूमंस को नहीं हो रहा है। ओके, देन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन prion disease आर CJD, which consist of three main categories: sporadic, genetic and acquired. ओके, नाउ CJD का फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो यहाँ लिखा हुआ है आप लोग का CJD का फुल फॉर्म। This is the full form of CJD, which is Creutzfeldt-Jakob disease. Okay, and this disease can be genetic, can be acquired, can be sporadic. Sporadic मतलब क्या होता है बेटा, randomly, मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी चीज के randomly occasionally डिजीज आपको हो जा रहा है। ओके, और ये डिजीज किसको हो रहा था, ह्यूमंस को, देन कुरु ह्यूमंस, देन बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसको कि नॉर्मली मैड काउ डिजीज बोला जाता है, जो कि काउज लोग को हो रहे थे। देन स्क्रैपी बेसिकली affects sheep, and chronic wasting disease which is affecting mule deer. ओके, तो बेसिकली ये सारे डिजीज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ही हैं जो हम देख रहे हैं एनिमल्स को भी हो रहे हैं, लाइक ह्यूमन, काउ, sheep, mule deer, etc. ओके, so basically this was all about the first topic which was prions. I hope आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा regarding to prions. Next is our next topic, viroids. Viroids were discovered and named by Otto Diner and are the smallest infectious agents of plants that are single-stranded, covalently closed circular RNA molecule which is about 250 to 400 nucleotide long and is not associated with any protein. Okay. तो बेटा क्या है विरियोइड, अगर हम देखें तो विरियोइड को फर्स्ट आपको ये याद करना है कि उसको ऑटो डाइनर ने डिस्कवर भी किया है और नाम भी दिया है। अब विरोइड्स क्या हैं अगर हम देखें, तो अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो वायरस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, वायरस के पास क्या रहता है, बाहर में एक प्रोटीन कवरिंग रहता है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, एंड इनसाइड दैट जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट विच कैन बी DNA और RNA। बट इन केस ऑफ विरियोइड क्या होता है बेटा, इसके केस में कोई भी प्रोटीन कवरिंग नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, एंड दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। मीन्स इसका कोई कवरिंग नहीं है, बस एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल है जो कि एक विरियोइड के जैसे बिहेव कर रहा है। ओके, एंड इट इज क्लोज्ड सर्क्यूलर इन नेचर। और ये क्या बेटा, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस फॉर्म है, पैथोजन के जैसे काम कर रहा है और प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है। ओके, जरूरी नहीं है कि जो भी पैथोजन होते हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं वो सिर्फ एक बैक्टीरिया या वायरस या मतलब ऐसा कुछ प्रोटोजोआ होंगे। इवन RNA कैन ऑल्सो बिहेव एज इन्फेक्शियस फॉर द प्लांट्स। ओके, एंड हम लोग को ये पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी प्रोटीन, ऑल्सो इट डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है बेटा कि RNA मॉलिक्यूल्स दे अंडरगो ट्रांसलेशन प्रोसेस टू फॉर्म प्रोटीन, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन दे डू नॉट नीड अ हेल्पर वायरस फॉर रेप्लिकेशन, इवन दो दे डू नॉट एनकोड एनी प्रोटीन्स। ओके, एंड दे आर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉन प्रोटीन कोडिंग RNA। बट आप लोग को ये पॉइंट याद रखना है, सम विरियोइड्स डिस्प्ले कैटालाइटिक एक्टिविटी वाया हैमर हेड राइबोजाइम। ओके, राइबोजाइम्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये तो आप लोग को पता होना ही चाहिए। राइबोजाइम मतलब क्या, मतलब RNA एंजाइम्स। RNA एंजाइम्स मतलब जो RNA एज एंजाइम काम कर सकते हैं उन लोग को हम राइबोजाइम बोलते हैं। हैमर हेड राइबोजाइम का मतलब होता है इट इज अ स्मॉल कैटालाइटिक RNA दैट कैन कैटालाइज अ सेल्फ क्लीवेज रिएक्शन, मतलब वो लोग अपना क्लीवेज रिएक्शन को खुद ही इनिशिएट करते हैं, खुद ही करते हैं। ओके, नाउ अगर हम रेप्लिकेशन का बात करेंगे तो विरियोइड रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस और इन प्लास्टिड्स, मोस्टली क्लोरोप्लास्ट।
तो क्या होता है बेटा, अगेन वीरियोइड को एक होस्ट बॉडी दरकार है एंड दैट होस्ट बॉडी इज प्लांट। वीरियोइड जब भी रेप्लिकेशन करेगा तो वो इनसाइड द प्लांट बॉडी ही करेगा। अब प्लांट बॉडी में भी एग्जैक्टली वो किस जगह में रेप्लिकेशन कर रहा है अगर हम देखें, तो या तो वो न्यूक्लियस में करेगा प्लांट का या होस्ट बॉडी का, या फिर वो क्लोरोप्लास्ट में करेगा। ये दोनों में से कोई एक जगह, इधर दैट इज न्यूक्लियस और दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे वायरॉइड अपना रेप्लिकेशन करेगा। एंड जो मैकेनिज्म से वायरॉइड रेप्लिकेशन होता है दैट इज अ रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म विद आरएनए इंटरमीडिएट। ना रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म तो बहुत डिटेली रहता है बेटा, बट यहाँ पे हमको उतना डिटेली जाना नहीं है। हम एकदम सिंपली अगर देखें कि क्या होता है तो वो मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखा दे रही हूँ। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म बेसिकली इसमें क्या होता है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सर्कुलर डीएनए। ओके, सिर्फ सर्कुलर डीएनए के लिए ही रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। ना इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हो एक ग्रीन कलर का स्ट्रैंड है एंड एक ब्लू कलर का स्ट्रैंड है। ग्रीन कलर स्ट्रैंड इज पॉजिटिव एंड ब्लू कलर स्ट्रैंड इज नेगेटिव। ना फर्स्ट क्या होता है, आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है लास्ट में देख लो। The infecting circular positive RNA is repeatedly transcribed into negative strand. These replicative intermediates serve as template for synthesis of positive strand. ना क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में से अगर हम देखें तो पॉजिटिव स्ट्रैंड इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन। वो पॉजिटिव स्ट्रैंड ही है बेटा, ग्रीन कलर वाला जो है, जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है इन द होस्ट बॉडी दैट इज प्लांट। ओके, एंड ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है फर्स्ट ये एक टेम्पलेट के हिसाब से बिहेव करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड। आप देखो पॉजिटिव स्ट्रैंड है और उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके ही क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है। ना ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड बनता है बेटा, इसका एक एंड रहता है 3' OH एंड और एक डैश रहता है 5' एंड। ना रेप्लिकेशन कहाँ से हो रहा है, 3' एंड से हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स आ के 3' एंड में ही ऐड होते जा रहे हैं। बट जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स 3' एंड में ऐड होते जाएंगे 5' एंड विल बिकम इलोंगेटेड। आप डायग्राम में भी देखो 5' एंड क्या होता है, बड़ा होते जा रहा है, बट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज टेकिंग प्लेस इन 3' एंड। ओके, फिर क्या होगा, जो 5' एंड बड़ा होते जा रहा है वो एक पॉइंट में आके क्या करने लगेगा, सेल्फ क्लीवेज विच इज बाय द हेल्प ऑफ वायरॉइड राइबोजाइम। वायरॉइड राइबोजाइम्स ही क्या करेंगे, खुद सेल्फ क्लीवेज करके जो 5' एंड में स्ट्रैंड बना है उसका क्लीवेज करके मोनोमर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। और फिर ये मोनोमर स्ट्रक्चर क्या होगा, आपस में वापस सर्क्यूलाइज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। इतना तो हमको पता है कि डीएनए लाइगेज इज़ द मॉलिक्यूलर ग्लू, जहाँ भी जोड़ने का काम आता है तो वो डीएनए लाइगेज ही करता है। और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स आके ऐड हो रहे हैं, दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम वो चीज़ कर रहा है यानी रेप्लिकेशन कर रहा है, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, लीनियर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर को जोड़ के सर्कुलर फॉर्म में ला देगा। और एज अ रिजल्ट आप यहाँ पे देखो नेगेटिव स्ट्रैंड सिंथेसिस हो गया है। अब यही नेगेटिव स्ट्रैंड फिर टेम्पलेट के हिसाब से काम करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड। ओके, ना पॉजिटिव स्ट्रैंड में भी एक हो जाएगा 3' एंड, एक हो जाएगा 5' एंड। सेम 3' एंड में क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स आके ऐड कर रहे हैं, 5' एंड इलोंगेटेड होते जा रहे हैं। फिर वही 5' एंड में से सेल्फ क्लीवेज होगा, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एंड देन फिर वो सर्कुलर करके फॉर्म कर देगा हमारा पॉजिटिव स्ट्रैंड। एंड पॉजिटिव स्ट्रैंड ही वो स्ट्रैंड है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर पा रहा है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है टू कॉज इन्फेक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है वही इन्फेक्शन कर सकता है, और वो एज अ टेम्पलेट काम करके ट्रांसक्राइब कर रहा है नेगेटिव स्ट्रैंड को। फिर यही नेगेटिव स्ट्रैंड टेम्पलेट जैसे हेल्प कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड। ओके, आई होप यू आर क्लियर। देन नेक्स्ट, despite the existence of several RNA-dependent RNA polymerase in plants, transcription of viroid RNA is catalyzed by nuclear or plastid DNA-dependent RNA polymerase। तो जो वायरॉइड के केस में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, तो पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से हो रहा है। कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। और वो आरएनए पॉलीमरेज किसका यूज हो रहा है बेटा, होस्ट बॉडी का। प्लांट्स के ही न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट में आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट रहते हैं जो कि वायरॉइड का ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओके,
However, despite this simplicity, when viroid RNAs enter appropriate host cell, they manage to replicate, move through the plant, and avoid the host defensive response causing plant disease. अब ये सब होने से क्या हो रहा है बेटा, वायरॉइड आरएनए आराम से होस्ट बॉडी में एंटर कर रहा है, रेप्लिकेट कर ले रहा है यूजिंग द प्लांट मशीनरी। मतलब वायरॉइड आरएनए का तो खुद का कुछ मशीनरी है ही नहीं, वो क्या कर रहा है, अपना होस्ट या प्लांट बॉडी का मशीनरी को यूज करके सब काम अपना कर ले रहा है। इनफैक्ट प्लांट बॉडी में मूव भी कर ले रहा है, प्लांट का या होस्ट का जो डिफेंसिव रेस्पॉन्स है उसको भी अवॉइड करके प्लांट डिजीज भी कर दे रहा है। अब ये जो प्लांट डिजीज बेटा करता है वो कर पाता है बिकॉज ऑफ आरएनए साइलेंसिंग। ओके, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं बेटा, एक सेकंड में लिख देती हूँ, आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म। ये जो वायरॉइड आरएनए है दे परफॉर्म आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म। ना क्या होता है, प्लांट के न्यूक्लियस में बेटा क्या होता है, अब प्लांट का न्यूक्लियस बोला या होस्ट के न्यूक्लियस में कोई सर्टन जीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका काम रहता है दैट जीन्स एनकोड फॉर हीट शॉक प्रोटीन्स। ओके, नाउ हीट शॉक प्रोटीन्स का काम क्या रहता है बेटा, कि वो प्लांट के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी स्ट्रेसफुल कंडीशन। मतलब कोई भी डिजीज से या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से वो प्रोटीन्स प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट के बॉडी को, और वो प्रोटीन्स को जो जीन कोड कर रहे हैं वो प्रेजेंट रहता है प्लांट के न्यूक्लियस में। अब क्या होता है बेटा, जब प्लांट के न्यूक्लियस में ये वायरॉइड आरएनए एंटर करते हैं तो वो लोग वो जीन्स के साथ जाके बाइंड कर देते हैं और वो जीन्स को साइलेंस कर देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो भी प्लांट है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है, एंड एज अ रिजल्ट प्लांट में डिजीज क्रिएट हो जाते हैं। हम प्लांट में देखते हैं कि प्लांट्स आर इन्फेक्टेड विद डिजीज। दैट मीन्स जो वायरस के आरएनए हैं वो क्या कर रहे हैं, आरएनए साइलेंसिंग का मैकेनिज्म कर दे रहे हैं, जिसके कारण हीट शॉक प्रोटीन्स फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं प्लांट में, एंड एज अ रिजल्ट प्लांट डिजीज इज सीन। ओके, एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो वायरॉइड्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। अभी तक ऐसा कोई डिजीज देखा नहीं गया है जो कि एनिमल्स में हो रहे हैं ड्यू टू वायरॉइड्स। A few well-studied viroids include coconut kadang viroid and potato spindle tuber viroid (PSTV). Okay, तो these are two वेल स्टडीड वायरस जो कि डिजीज क्रिएट करते हैं। आपको इसमें से एक चीज़ याद रखना है कि जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड है, इट वाज द फर्स्ट वायरॉइड विच वाज डिस्कवर्ड एंड इट इज़ इन अबाउट 1971 ईयर। और इसमें क्या हुआ बेटा, ड्यू टू दिस वायरॉइड जो पोटैटोज थे देयर शेप चेंजेस। नॉर्मली जो पोटैटो का शेप होता है वो चेंज हो गया और स्पिंडल शेप्ड की पोटैटो दिखने लग गए। ओके, और जो कोकोनट कडांग कडांग वायरस है ऑब्वियसली दे विल अफेक्ट कोकोनट। ना उसमें क्या हुआ, जो कोकोनट फ्रूट है, एक्चुअली तो कोकोनट फ्रूट हार्ड रहता है, बट इस डिजीज के कारण क्या हुआ, कोकोनट फ्रूट बिकम्स वेरी सॉफ्ट। मतलब वो लोग इतने सॉफ्ट हो गए कि कोई चिड़िया भी आके उसमें चोंच इजीली मार लेगी। ओके, देन लास्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ वायरसेस एंड वीरियॉइड्स। तो आप लोग देखो, अगर हम न्यूक्लिक एसिड में देखें तो मैंने बोला वायरस में the genetic material can be DNA or RNA and it will be single stranded or double stranded, but viroids के केस में only single stranded RNA is present. देन वायरस के केस में प्रोटीन तो प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन कैप्सिड भी प्रेजेंट रहता है, बट वायरॉइड्स के केस में दोनों ही एब्सेंट हैं। देन वायरस का होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है बेटा, बट वायरॉइड्स के केस में तो होस्ट ओनली प्लांट्स ही है। ओके, तो आप लोग समझ पा रहे हो ना, वायरस मतलब क्या है, जिसका एक प्रोटीन कवरिंग होगा, उसके अंदर में न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है और वो कोई भी होस्ट को इफेक्ट कर रहा है। बट अगर हम वायरस का केस देखें तो उसमें प्रोटीन कैप्सिड या कवरिंग कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो कि फिर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और वो सिर्फ प्लांट्स को इफेक्ट करता है। और वहीं अगर हम प्रियॉन्स का बात करें जिसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्रियॉन्स मतलब है ओनली प्रोटीन। ओके, इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडेड नहीं है, ओनली प्रोटीन कवरिंग जो है दैट इज बिहेविंग लाइक प्रियॉन्स, और वो सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, वो प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपको याद रखना है प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन काम कर रहे हैं एंड विरियड्स में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए काम कर रहा है। और प्रियॉन्स एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं और विरियड्स प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। Okay, I hope you are clear up to this. So this is all about today's lecture. थैंक यू। अगर आप लोग को कुछ भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना नोट्स बोल के, श्योरली आई विल शेयर द नोट्स विथ यू। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल
and share it with your friends. Okay, bye.